Assalamu alaikum, ladies and gentlemen. If you recall, in the previous session, we had been discussing the integrated marketing communications, as well as part of it was advertising. और वहाँ जो logic थी वो ये थी कि communication is the final act of positioning, in which whatever your strategic logic of positioning is in terms of value proposition or whatever you want to communicate to the customer, it has to be done through an integrated fashion using all the possible tools that a company has in possession, which may include personal selling, sales promotion, advertising, any kind of media, social media communications, written or in terms of visuals. We had been discussing the logic, and we categorically specified that the two criteria on which an effective integrated marketing communication will rest are on 2 points. One is how much knowledge does it create in the mind of the consumer regarding the product or the services, or whatever the position or the value proposition, or what is it that a consumer will benefit from using that product. Second was the kind of image that the product, services will create in the mind of the consumer. So when we were talking about this is exactly what we were talking about in terms of brand equity. And our logic was that in terms of communication, the only logic is that brand equity should grow. And we were talking about brand equity is a differentiating point which suggests that one brand is better than the other, and the willingness to pay for a higher brand equity product will be more than willingness to pay for another brand which does not have the same output in terms of willingness to pay from the customer. So the consumer requires to know the product and then requires to create positive associations with the brand or the product or the services. Those positive associations are the ones which will actually lead to the creation of the image. Now, in this, we were very clear that how does a process take place in terms of both the efficiency and the effectiveness. The efficiency is the cost that you will incur in terms of how much can you raise the willingness to pay and how much would you spend in trying to do that. And in the second case, the effectiveness, how efficient is this all to link up with your strategic objectives. Now, having talked about it in very detailed length, we are now in the last session of this course or program. And I told you at that time that I will try and bring articles for the purposes of discussing not only how a research is incorporated, where those research points can be targeted, how can we do that. Further, we were also trying to suggest कि अगर यही काम करना हो और marketing में research भी करनी हो तो फिर कहाँ focus किया जाए. So for the purposes of this, I brought two articles. Number one article is Marketing and Business Performance. Now, this article was published in the Academy of Marketing Sciences and 2012 की publication है. और इसका मकसद इस आर्टिकल को शामिल करने का यह दो काम कर रहा है. ये एक तो थ्योरेटिकली एक ही आर्टिकल में जितना भी हमने कोर्स किया है वो तकरीबन इसमें उसकी समरी के तौर पे वो पेश किया जा रहा है इन अ थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव. इसका मतलब ये हुआ कि एवरीथिंग दैट वी हैव बीन डिस्कसिंग इन टर्म्स ऑफ द रिसोर्स बेस्ड व्यू, द आईओ पर्सपेक्टिव, in terms of positioning and performance approach to IO perspective, or the RBV, where we talked about the dynamic capabilities and their interaction. Then we were talking about competitive advantage and how does that get created, और उसकी link जो है वो किस तरह से create होती है with performance. ये और उसमें कौन से ऐसे variables हैं या कौन से ऐसे constructs हैं जो interfere करते हैं इस पूरे system में, और उसमें कौन कौन सी चीजें हैं जो शामिल हैं. तो ये एक ऐसा आर्टिकल है which I thought I will add for your purposes कि
कोर्स करने के बाद अगर आप इस आर्टिकल को एक ही लॉट में करेंगे तो बड़ा सिंपली वो सारी चीज़ें जो सेपरेट थीम्स में और सेपरेट टॉपिक्स में हमने डिस्कस की, तो वो एक ही लॉजिक में बड़े शॉर्ट फ्रेम के अंदर उसका लिंक आपको कैटेगोरिकली नज़र आ जाता है। तो ये आर्टिकल है जिसको मैंने शामिल किया। दिस आई थिंक वी विल, इफ वी हैव द टाइम, वी विल डिस्कस इट, though there is not much that we can talk about it other than what we have already done, but it will be just a recapitulation of all the things that I have talked about in this course. The second article is more research framed. Why? Because constantly we have been talking about performance. Now, हमने हर जगह पे बात की परफॉर्मेंस मेजर्स, परफॉर्मेंस क्या होगी, आउटकम परफॉर्मेंस में होना चाहिए, लेकिन हमने जोर नहीं लगाया कि ये परफॉर्मेंस मेजर्स होंगे क्या. Now, here is a research that was again undertaken and published around 2012, और इसका जो लॉजिक है या इसका जो टॉपिक है वो है ये कि मार्केटिंग परफॉर्मेंस मेजरमेंट सिस्टम डज कम्प्रिहेंसिवनेस इंप्रूव परफॉर्मेंस. नाउ, कहने का इनका जो लॉजिक है टाइटल में अगर आप देखते हैं तो उसमें सिर्फ ये है कि कितना कम्प्रिहेंसिव मेजरमेंट स्केल्स होने चाहिए, जिसको हम की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स भी बोल सकते हैं, या परफॉर्मेंस मेजर्स हैं, उनका रोल क्या है परफॉर्मेंस के एक्चुअल हासिल करने में. तो दिस इज द आर्टिकल जिसने एक क्या नाम है, जर्नल ऑफ मार्केटिंग का भी है. ऑब्वियसली जर्नल ऑफ मार्केटिंग इज कंसिडर्ड टू बी द हाईएस्ट इम्पैक्ट फैक्टर जर्नल, और इसमें वही रिसर्च पब्लिश होती है जो कि ग्राउंड ब्रेकिंग होती है. तो ये एक ऐसा आर्टिकल है जो परफॉर्मेंस के हवाले से, जो कि हम कवर नहीं किया इन द सेंस के स्ट्रैटेजी के साथ उसका डायरेक्ट कोई लिंक नहीं है, लेकिन आउटकम स्ट्रैटेजी का है ही परफॉर्मेंस में. इसको ज़रा मैं थोड़ा डिटेल में स्टडी या उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा यूजिंग द मॉडल दैट दे हैव गिवन. और फिर इसी के अंदर व्हाइल आई एम डिस्कसिंग, you will have to pay attention because I will try and link up the logic of this article in various areas जो कि clear नहीं हैं with some of the discussions that we have taken place or we have been doing in the previous sessions. और जब आप उनको देखेंगे तो आपको ये भी नजर आएगा कि अगर हम ये कर रहे हैं तो अगर हम फिर उसके बेस के ऊपर पहले आर्टिकल की मदद लें तो हमारे पास एक क्लियर पिक्चर जो है वो एस्टैब्लिश हो जाएगी इन दोनों को शामिल करने से. नाउ, क्वेश्चन यही है कि कंप्रीहेंसिव मेजरमेंट सिस्टम वो क्या है मार्केटिंग के लिए, वो शुरू कैसे हुई. कोई तकरीबन 10 साल के करीब पहले अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन ने एक प्रोग्राम शुरू किया रिसर्च के हवाले से, और उन्होंने जितने भी मार्केटिंग के अंदर रिसर्चर्स थे उनसे ये रिक्वेस्ट की कि वो एक कंप्रीहेंसिव फ्रेम हमें बताएं कि मार्केटिंग के मैट्रिसेस आर बेसिकली मेजरमेंट स्केल्स, कि हमें कैसे पता चले कि हमारे मार्केटिंग जो है वो ठीक काम कर रही है. क्या मार्केटिंग वाले अपनी परफॉर्मेंस दिखा सकते हैं. और उसका जो लॉजिक है वो जाता है हमारे पहले लेक्चर में, जहां हमने ये देखा था कि मार्केटिंग की जो हिस्टोरिकल क्या नाम है पोजीशनिंग है एक कंपनी के सिस्टम में, वो काफ़ी उतार चढ़ाव का उस पर असर होता रहा है. क्यों? क्योंकि कई दफ़ा वर्ड ऑफ माउथ के बेस के ऊपर मार्केटिंग ने एक ऐसी पोजीशन इख्तियार कर ली कि सबसे इम्पोर्टेंट कंपोनेंट हो गया एक कंपनी के अंदर. फिर देखा कि क्योंकि उसका कोई डायरेक्ट इम्पैक्ट नज़र नहीं आ रहा परफॉर्मेंस के ऊपर, कोई बता नहीं सक रहा कि किस चीज़ की वजह से क्या हुआ, तो द मार्केटिंग स्टार्टेड टेकिंग अ बैक सीट, और उसकी जगह पे दूसरे जो फंक्शंस थे वो इंपॉर्टेंट बनने शुरू हो गए. उसमें हमने देखा है कि सप्लाई चेन मैनेजमेंट, जो कि बेसिकली डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम्स का एक वैल्यू चेन में एक हिस्सा है, तो वो अपने तौर पे सेपरेट होना शुरू हो गया, और लॉजिस्टिक के अंदर सिर्फ रिटेल रह गया या होलसेल रह गया. जबकि ये सारे कंबाइंड फ्रेम्स सिर्फ एक ही चीज़ को टारगेट करते थे, और वो था कि कस्टमर को सेटिस्फाई कैसे किया जाए बेहतरीन तरीके से. और ड्रकर की जो लॉजिक मैंने आपको बताई थी वो यही थी कि अगर कस्टमर सेटिस्फाई होगा किसी दूसरे कंपनी के और किसी कंपैटिटिव प्रोडक्ट के मुकाबले में, द कंपनी विल परफॉर्म बेटर, बिकॉज ऑब्वियसली कस्टमर विल बी मोर सिक्योर विद द प्रोडक्ट विच is
in his perception, understands him better, understands the customer better. Therefore, whatever is part and parcel of that proposition will be good for the customer, and therefore लॉजिक कहता है कि वो ज्यादा अट्यून्ड होगा उस प्रोडक्ट की तरफ. तो एक ये प्रोसीजर 10 साल चलता रहा और इसमें कई पेपर्स निकले, मुख्तलिफ किस्म के पेपर्स थे, और उसमें थ्योरेटिकली इसी पेपर में कई जगहों पे रेफर भी किया गया कि कई नंबर ऑफ पेपर्स वर बेसिकली कॉन्सेप्चुअली फ्रेम्ड. कॉन्सेप्चुअली फ्रेम का मतलब ये है कि हाइपोथेटिकली उन्होंने रिलेशनशिप्स को अज्यूम किया या थ्योरी के थ्रू, by reading theory, by writing on theory, they tried to propose certain relationships, but कई जगहों के ऊपर ये categorically, empirically test नहीं किए गए, in the sense that there was no confirmatory or testable frames that were proposed which could have generally decided कि ये relationship है and this is the outcome that will have on performance और इसका ताल्लुक इससे है. So given this basic, this paper actually tried to cover the gap. Gap उन्होंने क्या देखा कि जितनी भी research previously I've already quoted was normally related to one single item relationship, in the sense that there is a relationship between customer satisfaction and performance. Performance to be measured with return on sale or return on asset or profitability or market share. So they decided कि एक तो ये जो relationship है ये singular नहीं है, because there are so many other factors that might be operative at the same time to establish this logic. So जरूरी नहीं है कि customer satisfaction अकेली चीज हो, ये भी तो possible है कि employee satisfaction जो कि एक antecedent है, यानी कि it precedes the customer satisfaction. हमने देखा लिटरेचर में कई जगहों पे मैनेजमेंट में पढ़ा होगा कि ह्यूमन रिसोर्स की जो सिग्निफिकेंस है, इट इज बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट दे हैव एन इम्पैक्ट ऑन कस्टमर बिहेवियर्स. सो देयरफॉर इफ द एम्प्लॉई इज सेटिस्फाइड, एम्प्लॉई इज वेल ट्रेन्ड, एम्प्लॉई हैज द राइट behaviors and right response systems, so it will have an impact on performance, but through creating customer satisfaction. So this was the logic that they tried to bring into position. Further, they also came to the conclusion कि जो data collection होगा वो कई दफा हम we ask only one single person, which is called monodic finding of the information. That is, we ask one person to give us. But when we go to dyadic data collection procedures, so what happens is that within the same company, two people give answers on the same questionnaire. So there is a kind of interrelated information system generated from within the company. If there is any confusion, that confusion can be eliminated by this dyadic frame, which means it becomes more strong in terms of having a method of integration of knowledge that can be drawn from one source. हम इसको triangulation तो नहीं बोल सकते, because triangulation का मतलब है 3 areas you have different sources, but they try to do that they try to secure information not only from the respondents, but they also try to get information on certain aspects of their research from archival evidence, which is secondary evidence in terms of documents, in terms of even finding performance measures which were historically targeted, and so on and so forth. So that means it was a comprehensive kind of a research that was proposed. Now, having said this, it is interesting to try and find out that we have to come to a conclusion as to what was the model that was being developed for this purpose. So when they were developing the model, what they have tried to identify are the issues that may be relevant to a similar kind of research or the outcomes of the research. So we have to be obviously kind of careful when we are trying to suggest a model or an outcome, because उसका जो research का जो एक logic है जो they have also tried to confirm is कि वो generalizable हो इसके outcomes. That means that these outcomes can be applied in a journal form
across all companies in all kinds of environment. That's the basic logic, and their specification is that when they were studying literature and trying to find information regarding this particular aspect, they discovered that most of the time जो models specify किए जा रहे थे, they were not more or less generalizable, because they studied some case studies, or we know that, we recognize the fact that case study research may not be highly generalizable. Generalizability के लिए normally 2 or 3 kinds of research frames are normally required. In one case, we normally need to have cross-sectional data or longitudinal data of time series, so that we can actually establish the relationships between cause and effect. And here is one research that is being proposed at this point of time, जिसका मैं discussion कर रहा हूँ, कि उसमें causality का issue जो है वो determine हो रहा है, और इसका मदद क्या एक manager के लिए क्या है कि the person or the manager can actually understand the relationships between whatever is the independent variables on the dependent variable, which is performance, and see कि कौन कितना असर डालता है in terms of the performance that we are concerned with. So because ये भी पता है कि we have limited resources, or if unless and until we can prioritize the application of resources into specific areas, so it becomes very difficult to try and see what will be the impact. And we also know that because of this relationship में अगर जैसे marketing में this is very common कि marketing में we take an action at a point of time and the results may accrue after a lagging period. That means if in 1 year we started year 1, so it's possible that in the 3rd year the impact comes in. But ये अगर किसी तरह से हमें इसकी knowledge ना हो how these things can work, so because of the day-to-day and issues that keep coming in and going out of the system, तो ये जो relationships का focus है ये lose कर जाता है, and therefore a person does not really truly know कि impact किस चीज़ का कहाँ पैदा हुआ. तो इस चीज़ को cover करने के लिए 2 issues are more important. तो they found out कि जो measurement systems हैं, they discovered, and this is their proposition, कि if you identify measurement systems या measurement scales to measure the performance outcomes, तो जितने बेहतर तरीके से ये performance measures बनाए जाएंगे उतने बेहतर तरीके से performance occur करेगी. So it's a very interesting kind of a frame where it suggests कि और चीज़ों को छोड़ दें, आप strategy क्या है, ये है, वो सिर्फ एक limited frame में आ गए हैं कि performance measures अगर एक कंपनी सेट करती है और उसको फिर उसी नीयत से उन्हीं थिंकिंग प्रोसेस के थ्रू उन्हीं वेरिएबल्स के थ्रू जिसके थ्रू मीडिएशन होगी या मॉडरेशन होगी या किसी के इम्प्लीमेंटेशन का फ्रेम आएगा, उसकी वजह से इन परफॉर्मेंस मेजर्स की वजह से जो आइडेंटिफाई किए गए तो उनका इम्पैक्ट परफॉर्मेंस पे आएगा और वो पॉजिटिव होगा. और उसका जो पीछे इसकी जो लॉजिक है वो एक किताब भी पब्लिश की थी नॉर्टन एंड कपलान ने, जिसको बैलेंस स्कोर कार्ड बोलते हैं. उसके अंदर उन्होंने बहुत कैटेगोरिकली बैलेंस स्कोर कार्ड के अंदर ये एस्टैब्लिश किया था कि इफ यू हैव अ मेजरिंग पॉइंट्स तो फिर योर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द स्ट्रैटेजी एंड स्ट्रैटेजी के जो इम्प्लीमेंटेशन फ्रेम्स हैं वो बेहतर तरीके से इम्प्लीमेंट किए जाएंगे. और उनकी चूंकि इम्प्लीमेंटेशन का ताल्लुक डायरेक्टली स्कोर कार्ड के ऊपर है, तो हम जब स्कोर करेंगे हर पॉइंट के ऊपर अब ऑब्जेक्टिव को कि कितना हासिल किया कितना नहीं किया, तो उसकी वजह से एक इम्प्रूवमेंट का फ्रेम आना शुरू हो जाएगा. व्हाई? बिकॉज द मैनेजर्स विल स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग कि जो ऑब्जेक्टिव था इसका ताल्लुक स्ट्रैटेजी से कहाँ था और इसके लिए क्या इम्प्लीमेंटेशन प्रोसीजर्स चाहिए थे. और अब हम जब इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं तो whatever the level that we achieve in the implementation must be reflected in the scorecard. So scorecard was the actual measure of the implementation or the frame to implement a strategy and the effectiveness of how various activities are linked together to achieve these specific goals that have been set by the company in its framework. अब जब ये बोल दिया तो इसमें according to information and research this came about के जितना comprehensive होंगे
ये मेजरमेंट स्केल्स जिनको हम की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स भी बोल सकते हैं, अगर आपने सप्लाई चेन पढ़ी हो या आपने दूसरे एरियाज को स्टडी किया हो, तो वहाँ की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स लिए जाते हैं। कहने का मतलब ये है कि जो परफॉर्मेंस है वो क्या है जो कि इंडिकेट करेगा कि हमने काम ठीक किया। तो की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स बिकम अ स्पेसिफिक मेजरिंग स्केल। और यही चीज़ अगर मैं इसको मार्केटिंग में ले जाऊं तो हमने यहाँ इसको मार्केटिंग मेजर्स रख दिए। तो वी कैन ऑल्सो कॉल देम KPI मार्केटिंग, और वी कैन कॉल देम जनरली परफॉर्मेंस मेजर्स इन मार्केटिंग। तो comprehensiveness becomes an important criteria. Now, comprehensive के मुख्तलिफ लॉजिक्स हैं। कई लोग उसको कहते हैं स्ट्रेटेजिक फिट के हिसाब से देखा जाए कि हाउ स्ट्रांगली दे फिट द स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स एंड सो फोर्थ। तो इन्होंने कम्प्रिहेंसिवनेस को 3 फ्रेम्स में तोड़ दिया, और एक में उन्होंने कहा कि ये द परफॉर्मेंस मेजर्स मस्ट बी वेरी ब्रॉड in scope in terms of, and I'm specifically stating in terms of, not only looking at the outcomes but also the antecedents, कि जो चीज पहले हो वो भी नोट की जाए और जो आउटकम होना है वो भी उसमें आए। मैंने आपको एग्जांपल दी थी, फॉर एग्जांपल अगर परफॉर्मेंस मेजर कस्टमर सेटिस्फैक्शन है तो देयर इज अ लॉजिक कि employee satisfaction होगा because those employees who are satisfied with their job will try and contribute effectively to provide customer satisfaction, and therefore customer satisfaction will then be the outcome in terms of some performance measure like profitability, revenue, sales increase or whatever. तो जो performance measures हों according to these people should have a very broad scope, कि वो ना सिर्फ आउटकम्स की तरफ जाएं कि ऑब्जेक्टिव्स कौन कौन से मीट हुए, बट उससे जो पहले एरियाज में चीजें आती हैं जो कि प्रायर कंडीशंस हैं वो भी मीट होती हैं। फॉर एग्जांपल अगर कैपेबिलिटी नहीं है कंपनी के पास, फॉर एग्जांपल अगर एडवर्टाइजिंग कैपेबिलिटी नहीं है तो यू कैन नॉट ट्राई एंड चेक द इवैल्यूएटिव कैपेबिलिटी ऑफ एडवर्टाइजिंग। फॉर दिस पर्पस देयरफॉर दे ट्राई टू सजेस्ट that when you set the objectives of the company, then you must look at all possible areas that will contribute in one way or the other to the performance. And then through shortlisting, you can actually come, managers can do that through their personal experience and knowledge and sharing the logic to be able to identify the points that may be relevant in terms of the whole chain, because ये value chain की बात हो रही है। तो value chain starts from, let's say, the employee in one case, goes to the customer and then to the performance. So the outcome in terms of profit, अगर हम अपनी value chain को देखें तो वो नजर आती है। और यही value chain के हवाले से मैंने आपसे जब बात की थी distribution systems की, तो वहाँ भी value chain के ऊपर ही discussion, we focused our discussion on it. So we know that there is a value chain. It starts from raw material, it starts from whatever product capabilities, product development capabilities, आपकी क्या नाम है engineering capabilities, all preceding or before the product development will take place. And obviously if the product is targeted into the consumer, तो consumer satisfaction है, और फिर consumer satisfaction है, तो then we have a performance outcome. So the first fact that it should be very broad and covers the whole area thoroughly should become one of the criteria for a comprehensive marketing performance measures. That's one. Second, they suggested that there has to be strategic fit. Now, if you recall our discussion on strategic fit, here there is a little difference between the way the strategic fit is being used in the context of performance measures as against the strategic fit logic that we used in our discussion in the prior discussions. In the prior discussion, we were talking about that the strategy must fit the environmental requirements. So if we find that the resources, the way they are going to be aligned, the way they are going to be positioned in the market are consonant with the requirements of the market, requirements of the customer, requirements of the needs of the customer, then we tend to say that there is strategic fit. Now, the strategic fit in this context is just a variation in that all the objective measures that you will select have to fit with the objectives of the strategy. So every part, every point, every implication frame that you have
integrated in the strategy area, because strategy is not only developing a strategy, it's also in the implementation frame where you set objectives, you set methods of meeting those objectives, the targets that have to be achieved along the way, चाहे वो long term हो, चाहे वो short term हो. All these, जब ये चीजें हमारे सामने स्ट्रेटजी के अंदर हैं, तो फिर लॉजिक कहता है कि objectives should be targeted directly into the meeting of these objectives. And if they are fitting together, that they are comprehensive, we know that we have a very effective system in how it will affect our performance. Finally, they also came to the conclusion कि अगर relationships का पता ना हो, relationships का मतलब है causal relationship, if we do not understand what impacts what and what is the sequence of impact, what are the timelines of these impacts, if we are not clear, then we cannot come to a conclusion that we have been able to achieve a specific target. For example, like I said, if the objective target of a company is to create knowledge in the consumer's mind, create awareness, जो मैंने आपसे अभी पिछले हम लेक्चर में डिस्कस कर रहे थे, तो अगर ऑब्जेक्टिव है कि क्रिएट करना, तो फिर मेजर भी होना चाहिए कि कितने पीरियड ऑफ टाइम में कितना जो टारगेट मार्केट है उसकी कितनी परसेंटेज को अवेयरनेस होनी चाहिए, एंड हाउ शुड वी बी एबल टू मेजर दैट शुड बी स्पेसिफाइड. सो देयर इज एन ऑब्जेक्टिव, so we have a measure to see whether we have been able to meet that target. If that is done, we should be able to say that the more awareness that is created, and that's the relationship, the better the chances that brand equity will grow, because awareness के बगैर brand equity आती नहीं है. Same is the case with image. So keeping these 2 points in mind, what we are suggesting is that causal relationships have to be identified, and this comprehensive measures should take into consideration the relationships. क्योंकि अगर उसमें relationships identify नहीं हो सक रही आपके इस measure में, और वो idea नहीं दे सक रही कि किसकी वजह से क्या हो रहा है, तो the manager will not be able to truly focus on the areas that require their attention, and that makes more difficult the task of this. अब ये तो बात थी कि ये characteristics क्या होने चाहिए एक comprehensive performance measure के, लेकिन इसके अंदर एक चीज जो कि बहुत कैटेगोरिकल है, और वो मैंने आइडेंटिफाई किया था कि जनरलाइजेबिलिटी कितनी है. अब क्या ये हर कंपनी के लिए चलेगा या कुछ कंपनियों को फायदा देगा कुछ को नहीं देगा, तो दैट बिकम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन, और इस पे रिसर्च की जरूरत मजीद है. दिस आर्टिकल हैज ट्राइड टू लोकेट अदर थ्योरेटिकल फ्रेम्स कॉन्सेप्चुअली जिन्होंने ये सजेस्ट करने की कोशिश की है. Therefore, certain conditions, for example, certain marketing conditions, जिसमें complexity of the marketing हो सकती है, dynamic environment हो सकता है, उसमें strategy कौन सी है, और उसके अंदर जो strategy की requirements हैं वो क्या हैं, all these can create necessary points where you might like to have comprehensiveness, where if there is no certain amount of complexity, dynamism इतना नहीं है, marketing strategy simple है, तो फिर आपको comprehensive, ये वर्ड आप जरा कीप इट इन माइंड, comprehensive जो फ्रेम है वो इतना जरूरी ना हो, and therefore you do not, or the company does not need to waste time and effort in developing a comprehensive frame of performance measures when simple performance measure might work. और वो simple performance measure जैसे मैंने कहा, अगर complicated situation नहीं है, मार्केट की स्ट्रैटेजी बड़ी simplistic है, यानी कि focused है in a very specific area, तो फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने आपको कहा कि मैं अगर एग्जाम्पल हम ले लें एक मार्केट शेयर एज अ परफॉर्मेंस मेजर, तो वो सफिशिएंट है. अगर इसी को मार्केट शेयर को हम एग्जाम्पल में ले जाएं, तो कोका कोला और पेप्सी कोला का जो भी परफॉर्मेंस मेजर है वो मार्केट शेयर पर मरकूज है. इफ दैट इज द लॉजिक, देन वी डू नॉट रियली हैव टू क्रिएट अ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव लिस्ट ऑफ आइटम्स टू ट्राई एंड अंडरस्टैंड परफॉर्मेंस as a comprehensive whole. But certain companies might require this kind of a framework, particularly FMCGs हो सकती हैं, जिनका इशू ये है कि उनकी competitive जो situation है वो कितनी dynamic है, consumer requirements कितनी change कर रही हैं, variables कितने shift कर रहे हैं, तो वहाँ एक requirement बढ़ जाती है. तो मैंने आपको अभी यहीं हमारे उसमें, अगर आप पिछले हमारे lectures में नोट करें,
तो डायनामिज्म के हवाले से भी बात की थी और कम्प्लेक्सिटी के हवाले से भी बात की थी, तो वो मैं यहाँ क्लियर कर देता हूँ so that when we move forward we are easy to understand the few words that we use. Dynamism particularly occurs when you have more variables that tend to change and the speed of change in those variables becomes high. यानी कि वेरिएबल भी ज़्यादा हों और फिर उनमें चेंजेस रिक्वायरमेंट्स की जो चेंज है वो भी तेज हो, तो डायनामिक हो जाती है बहुत ज़्यादा. कंप्लेक्सिटी के अंदर नेचुरली द मोर द आइटम्स दैट यू हैव टू टेक केयर ऑफ creates a complexity of the situation. तो डायनामिज्म के अंदर ही complexity का भी हिस्सा है, और अगर ज़्यादा complexity है तो फिर लॉजिक में with the changing circumstances dynamism बढ़ जाएगा. Now this same logic is also operative. For example, अगर आपने लो कॉस्ट लीडरशिप पे जाना है तो वहाँ जो पॉइंट्स हैं या complexity कम हो जाती है because you are only focused on improving your performance, the effectiveness of your operations. लेकिन जब आप डिफरेंशिएशन में जाएं और हाई लेवल डिफरेंशिएशन हो रही है तो वहाँ यू कैन अंडरस्टैंड हाउ मेनी वेरिएबल्स मस्ट बी टेकन केयर ऑफ. और इसमें सिर्फ एक छोटी सी एग्जांपल देने के लिए ही काफ़ी होगा कि आपका इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन सिस्टम होगा, उनके अपने मेजर्स हैं, डिस्ट्रीब्यूशन एंड लॉजिस्टिक्स के अपने मेजर्स होंगे विच आर हेल्पिंग टू क्रिएट द डिफरेंशिएटिंग पॉइंट्स. तो ये जब कम्प्लेक्सिटी बढ़ जाए और डिफरेंशिएशन ही आपकी हाई लेवल डिफरेंशिएशन में आप जा रहे हैं तो फिर आपको भी परफॉर्मेंस मेजर्स भी उसी स्कोप से बढ़ाने पड़ेंगे. सो कीपिंग दीज टू पॉइंट्स इन माइंड वी नाउ मूव टुवर्ड्स द मॉडल. Now, before I actually draw the model, and Karame, we can then see it on the PowerPoint also, the idea is to be able to identify the various components of this model. Now, those components are more important, and I suggest that when we look at it, we also see the relationship of the various aspects and then come to the conclusion how they are linked. Because research में तीन चीज़ें important हैं, वो आप क्या नाम है नोट भी कर सकते हैं, और यहाँ जब हम चल रहे होंगे तो फिर मैं बताऊंगा भी कि नंबर वन, विच वेरिएबल इज रेलेवेंट टू द रिसर्च. वेरिएबल्स में हम सिर्फ वेरिएबल ही ना बोलें, कॉन्स्ट्रक्ट्स भी होते हैं, और कॉन्स्ट्रक्ट्स आर बेसिकली a grouping of various variables that can identify a particular phenomena or a particular idea. तो constructs होते हैं और उन constructs का आपस में relationship होता है. जो relationships जब create होते हैं और relationships को हम इस्तेमाल करते हैं to explain certain phenomena और outcome, तो हम theory बना रहे होते हैं. That's the way theories are created or theories are understood. So if we are talking here in terms of performance outcomes और performance measures, performance firm की जो performance है, चूंकि हमारा ताल्लुक वो है और हम देखना चाहते हैं कि इस performance को बेहतरीन तरीके से कैसे explain किया जाए, तो उसके लिए जो theory बन रही है वो बन रही है कि जो performance measures होते हैं जो कंपनी comprehensively create करती है उसका ताल्लुक directly performance से है. तो I will try and show you this frame of how a model that they propose was developed or instigated, and then we can come to the conclusion of how these can be developed and run. Now, what we are interested is that they have specified कि comprehensive measures कौन से हैं, तो मैं उसको CMPS बोल रहा हूँ because comprehensive marketing performance system के नीचे वो कौन से variables हैं that are relevant. Now, उसमें जैसे मैंने कहा तीन हैं, हमने कहा breadth है, breadth, then we have these fit, then we have the relationships. और ये causal cause and effect relationship है, तो मैं उसको CA लिख देता हूं to make it simpler. Now, according to them, अब यहां से जाना हमने है firm performance के ऊपर. तो firm performance is like I said ROA और ROS को हम रख लें अगर, तो what they are trying to suggest is that this CMPS, that is the comprehensive marketing performance system जो है वो जितना बेहतर होगा, जितना effective होगा, जितना scope में बड़ा होगा, उसका impact जो है
वो ROA और ROS पे डायरेक्टली आएगा। लेकिन उनका कहना विच इज़ वेरी लॉजिकल कि ये खुद ब खुद नहीं होगा, इट हैज़ टू गो थ्रू सर्टन फ्रेम्स, यानी कि इसका एक मीडिएटिंग फ्रेम आएगा, एक वेरिएबल्स ऐसे होंगे या कंस्ट्रक्ट ऐसा होगा जो मीडिएट करेगा इस रिलेशनशिप में, और ये डायरेक्टली नहीं है। सो वी कॉल दिस इनडायरेक्ट इफेक्ट्स रिलेशनशिप। सो इनडायरेक्ट इफेक्ट रिलेशनशिप इज बेसिकली relates to a mediating point or mediator which is normally shown in this form कि इसका इम्पैक्ट किसी चीज पे यहां होगा और फिर उन चीजों का मिक्स्ड इम्पैक्ट जो है वो ROA या ROS पे होगा। तो ये स्टडी का लॉजिक बनता है। यहां उन्होंने जो मीडिएटिंग वेरिएबल्स डाले उसमें दो हैं, एक है मार्केटिंग नॉलेज और दूसरा उन्होंने जो फ्रेम डाल दिया वो है मार्केटिंग की जो अलाइनमेंट है। तो मैंने MK और MA को फ्रेम में लाया हूं, मार्केटिंग नॉलेज या मार्केट नॉलेज कह लें और मार्केटिंग अलाइनमेंट या मार्केट अलाइनमेंट। बेसिकली मकसद क्या है उनका, अब जो लॉजिक चल रहा है इस पूरे फ्रेम में वो ये है कि इन तीनों का सेपरेटली और कलेक्टिव, बिकॉज दिस इज क्या नाम है, वेरियस कॉन्स्ट्रक्ट्स हैं, ब्रेथ का कॉन्स्ट्रक्ट है, फिट का है, रिलेशनशिप का है, और फिर ये सारे का सारा डिटरमिन करता है कि कितना कॉम्प्रिहेंसिव क्या नाम है मेजरमेंट्स हैं। तो ये एक जो पूरा ग्रुप है और इनके इंडिविजुअल कैटेगरीज, उनका ताल्लुक इन दो से है, या जिसमें हमने इंटरवीनिंग वेरिएबल डाल दिया उसके साथ इसका ताल्लुक है। ये क्या नाम है मीडिएटिंग वेरिएबल्स हैं, एक का ताल्लुक नॉलेज से है और दूसरा अलाइनमेंट से। अब अगर आप गौर करें तो हमने अपने पिछले लेक्चर्स के अंदर ये बात की थी कि जितनी बेहतर मार्केट नॉलेज होगी, और उसके लिए हमने जो कोट किए थे वो रेफरेंसेस थे नार्वर एंड स्लेटर और कोहली एंड जवर्स्की के इन इंफॉर्मेशन गैदरिंग का फ्रेम, इंफॉर्मेशन डिसेमिनेशन का फ्रेम। वो चीज़ें अब यहाँ नज़र आ रही हैं कि दे आर एक्टिंग एज इन देयर ओपिनियन मीडिएटिंग फ्रेम में आ रहा है कि इनकी वजह से मार्केट नॉलेज बढ़ता है। अब ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग फ्रेम है कि ये हाउ हैव दे बीन एबल टू क्रिएट द लॉजिक दैट दिस मार्केटिंग परफॉर्मेंस मेजर्स जो हैं वो नॉलेज में इजाफा करेंगे, और नॉलेज के अंदर इजाफा होने की वजह से रिटर्न ऑन एसेट जो कि एस्टैब्लिश्ड है। कहने का मतलब अगर मैं इसको ब्रैकेट्स में ले जाऊं तो वो ये है कि ये रिलेशनशिप एस्टैब्लिश्ड है, पहले से हमें मालूम है, और हमने दूसरी जगह पे कहा कि ये जो रिलेशनशिप है नॉलेज के हवाले से और अलाइनमेंट के हवाले से, ये रिलेशनशिप भी, मैंने आपको स्कोर कार्ड की बात की तो ये स्कोर कार्ड से निकल रहा है, और ये जो रिलेशनशिप है ये अगर हम नार्वर स्लेटर का मार्केट ओरिएंटेशन के बेसिस पे ले जाएं तो थोड़ा सा अगर आपको थ्योरी में लॉजिक को पता हो विदाउट गोइंग इनटू टू मेनी कॉम्प्लिकेशंस तो वी कैन सी कि ये कैसे फ्रेम हो रहा है, हाउ डज इट गेट फ्रेम। हाउएवर अब यहां वो कह रहे हैं कि बिकॉज नॉलेज कितनी बढ़ेगी, अलाइनमेंट कितनी बेहतर होगी, उसको कोई चीज अफेक्ट करेगी, और इस जो चीज ये अफेक्ट करेगी हम इसको मॉडरेटर बोलते हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर इनमें से कोई चीज ऑपरेटिव हो जाए तो ये जो रिलेशनशिप है ये स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं रहेगी, या ये बढ़ेगी या घटेगी। लेट्स से अगर मैंने यहां लिख दूं कि डिफरेंशिएशन एक स्ट्रैटेजी है आपकी, तो डिफरेंशिएटिंग स्ट्रैटेजी की रिक्वायरमेंट ये है कि नॉलेज में बेअंतहाजा इजाफा हो, क्योंकि डिफरेंशिएशन स्ट्रैटेजी रिक्वायर्स स्ट्रेट फॉरवर्ड स्ट्रॉन्ग नॉलेज ऑफ द कंपैटिटर एज वेल एज द कस्टमर। जितनी नॉलेज ये क्रिएट होगी तो उतना मार्केट और क्या नाम है नॉलेज में इजाफा होगा। लेकिन उनका कहना क्या है कि अगर ब्रेथ इसके मार्केट परफॉर्मेंस मेजर्स में होगी, स्ट्रैटेजिक फिट होगा ऑब्जेक्टिव के साथ, रिलेशनशिप्स स्ट्रांग होंगी और नजर आती होंगी, तो डिफरेंशिएटिंग स्ट्रैटेजी जितनी कॉम्प्लिकेटेड होगी उतना इसके ऊपर उसका असर आएगा, अलाइनमेंट में फर्क आएगा, नॉलेज की क्रिएशन में फर्क होगा। बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड डिफरेंशिएटिंग स्ट्रैटेजी है तो उसका इंपैक्ट इन रिलेशनशिप्स के ऊपर चेंज कर देगा। फॉर एग्जांपल दे हैव आल्सो एडेड अ रिलेशनशिप इन द सेंस ऑफ डायनामिज्म। मैं इसको DYM लिखता हूं और कंप्लेक्सिटी को C। अब अगर हम अब सोचना शुरू करें तो फिर नजर आता है कि जितनी डायनामिक एनवायरनमेंट होगी,
जितनी डायनामिक एनवायरनमेंट होगी तो उतना ही ये जो CMPS हैं, क्योंकि इसने उन सारे पॉइंट्स को मद्देनजर रखा होगा, पर्टिकुलरली रिलेशनशिप्स के बेस के ऊपर, कॉजल रिलेशनशिप्स के बेस के ऊपर, डायनामिज्म के बेसिस के ऊपर। उनको पता होगा कि डायनामिक में कितनी चेंजेस आ रही होंगी, किस स्पीड से आ रही होंगी, और कौन से रिलेशनशिप्स हैं जो शिफ्ट करेंगे। अगर वो रिलेशनशिप शिफ्ट करेंगे तो उसकी वजह से अलाइनमेंट, जो मार्केटिंग अलाइनमेंट, स्ट्रैटेजिक फिट की अलाइनमेंट है, वो बेहतर होगी, क्योंकि आपको अलाइन करना पड़ेगा अपने सारे सिस्टम को। तो अगर अलाइनमेंट बेहतर से बेहतर होगी तो परफॉर्मेंस ज्यादा बढ़ेगी। अगर अलाइनमेंट नहीं होगी, इवन बिकॉज आपका ये ठीक है, लेकिन ये जो 3 फैक्टर्स हैं, इंडिविजुअली या कलेक्टिवली, ये अलाउ नहीं करेंगे कि मार्केट अलाइनमेंट में आसानी हो, या मार्केटिंग की जो आपकी जो स्ट्रैटेजिक अलाइनमेंट है वो मार्केटिंग अलाइनमेंट में ठीक हो, या नॉलेज, क्योंकि नॉलेज लैग करेगा इन चीज़ों की वजह से। जैसे मैंने पहले कहा था, कई चीज़ों के रिलेशनशिप्स कुछ अरसे के बाद नजर आते हैं, लेकिन कोशिश ये होती है कि ये कैप्चर हो जाए इन रिलेशनशिप्स में, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप्स में। तो अगर ये कैप्चर हो जाए तो फिर कंप्लेक्सिटी इतना बुरा इंपैक्ट नहीं करेगा, नेगेटिवली उसको नहीं करेगा। और कंप्लेक्सिटी अगर डायनामिज्म ज्यादा हो जाए तो ये पॉसिबल है कि इस रिलेशनशिप में इंपैक्ट आए। और यही बात डिफरेंशिएशन स्ट्रैटेजी की है, किस लेवल की डिफरेंशिएशन स्ट्रैटेजी। However, one of the most important and interesting frame that you might like to consider in terms of research is कि क्या स्ट्रैटेजी इनको डिफाइन करेगी। Now I'm raising a question from this article. My question is कि ये जो हम CMPS बना रहे हैं, इसको हम कह रहे हैं कि they should fit with the strategy, which basically means that strategy must precede this logic. अब ये स्टडी की नहीं गई, ये स्टडी करने की जरूरत है कि ये जो CMPS है इनको कौन ड्राइव करता है। हमें ये तो नजर आ रहा है कि रिलेशनशिप्स हैं तो कोई चीज किसी चीज को ड्राइव करेगी। मिसाल के तौर पे मार्केट नॉलेज ज्यादा होगी तो ROA बढ़ेगा, ROS बढ़ेगा, रिटर्न ऑन सेल्स बढ़ेगा। अगर मार्केटिंग अलाइनमेंट ठीक होगी, और उसकी अलाइनमेंट का बेसिकली मतलब है इम्प्लीमेंटेशन ठीक है, तो रिटर्न ऑन सेल्स बढ़ेगा, रिटर्न ऑन एसेट बढ़ेगा। नाउ टू बी ऑनेस्ट, ठीक है कि marketing alignment implementation in terms of the firm's capabilities and the firm's competencies are all aligned in terms of implementing। जितनी बेहतर implementation होगी तो ये improve करेगा। और ये भी ठीक है कि अगर strategic fit है, आपके जो objectives हैं वो strategic objectives से fit हो रहे हैं, और उसके अंदर जो इम्प्लीमेंटेशन की रिक्वायरमेंट्स हैं वो सारी पूरी हो रही हैं इन टर्म्स ऑफ रिसोर्स एलोकेशन, इन टर्म्स ऑफ कैपेबिलिटी जनरेशन, कॉम्पिटेंस फ्रेमवर्क, तो ROA बढ़ेगा, ROS बढ़ेगा। बट माय क्वेश्चन इज व्हाट ड्राइव्स दिस। ये जो CMPS हमने बनाए, इनको लॉजिक में अगर हम जाते हैं पीछे, माइकल पोर्टर की लॉजिक को लेते हैं, जिसका कहना यह था कि कंपैटिटिव एडवांटेज इज क्रिएटेड बाय आइदर फॉलोइंग अ स्पेसिफिक स्ट्रैटेजी। तो अगर हम उस लॉजिक को लेकर चलें, जो थ्योरी वो दे रहे हैं, तो वो कह रहे हैं कि कंपैटिटिव एडवांटेज जो आता है और जिसका ताल्लुक डायरेक्टली आपके परफॉर्मेंस से है, उसको ड्राइव करने वाली चीज जो है वो स्ट्रैटेजी है। अगर हम उसकी लॉजिक को मानते हैं तो फिर हमें ये थोड़ा सा इनडायरेक्टली एक्सेप्ट करना पड़ता है कि स्ट्रैटेजी विल ड्राइव द कॉम्प्रिहेंसिवनेस। जितनी कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रैटेजी होगी, कॉम्प्लेक्स स्ट्रैटेजी होगी जो यहां डाली गई, तो वही इसको ड्राइव करेगी कि जितनी कॉम्प्लेक्सिटी, कितनी डिटेल में वो स्ट्रैटेजी फ्रेम हुई है। तो दिस इज जस्ट वन पॉइंट दैट आई एम रेजिंग, बट दैट इज नॉट necessarily the ultimate क्या नाम है objection to this. Why? Because in their write-up they are very clear कि लो कॉस्ट में तो ये चलनी नहीं है, उसका जरूरत ही नहीं है, क्योंकि लो कॉस्ट स्ट्रेटजी के अंदर कंप्लेक्सिटी नहीं होती। वहां हम सिंपल मार्केटिंग परफॉर्मेंस मेजर्स ले सकते हैं, जो मैंने कहा था MPM होगा, तो वो हम ले सकते हैं, इसका इशू कोई नहीं है। लेकिन जब हम डिफरेंशिएशन स्ट्रेटजी जितनी कॉम्प्लिकेट होती जाएगी, तो उतना ये जो रिलेशनशिप है इस पे असर आएगा, और अलाइनमेंट में गड़बड़ हो सकती है, क्योंकि इंप्लीमेंटेशन के प्रॉब्लम शुरू हो जाएंगे, और उसका ताल्लुक फिर डायरेक्टली इससे होगा। अब अगर हम ये बात एक्सेप्ट करते हैं तो हमें नजर आ रहा है कि ये मॉडल विद द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, द मीडिएटिंग वेरिएबल, सो मैं इसको MED लिख देता हूं, और ये आउटकम है विच इज द डिपेंडेंट वेरिएबल,
and then we have the moderator. However, ये end नहीं है, क्योंकि कुछ और exogenous variables होंगे. Exogenous variables are those variables which tend to disturb the relationships. For example, अगर मैं ये कहूं कि कंपनी बहुत बड़ी साइज की है, तो उसका फ्रेम और एक छोटी कंपनी जिसके अंदर ये रिक्वायरमेंट है सीपीएमएस की, सीएमपीएस की, तो दोनों में फर्क होगा. और अगर दोनों में फर्क होगा या जो उनके मैनेजर्स हैं उनकी नॉलेज एक्सपीरियंस के अंदर फर्क होगा, तो ये सारे रिलेशनशिप जो हैं डिस्टर्ब करेंगे. अगर ये करेंगे तो फिर उनको कंट्रोल करने की जरूरत पड़ती है, तो वी कॉल देम कंट्रोल वेरिएबल्स. यहां कंट्रोल वेरिएबल का मकसद ये होता है कि अगर हम दो कंपनियों को क्या नाम है करने लगे हैं, कंपेयर करने लगे हैं, और हम एक जनरलाइज्ड फ्रेम ला रहे हैं कि हम हर किस्म की कंपनी को उसमें शामिल कर रहे हैं, तो फिर हमें कई दफ़ा साइज को उसके जो एस्टिमेशन है उसमें से निकालना पड़ेगा. तो यहाँ इस सारे का मकसद और ताल्लुक कंट्रोल वेरिएबल्स को आइडेंटिफाई करना भी लाजिम है, और इन्होंने वो कंट्रोल वेरिएबल्स भी ऑब्वियसली आइडेंटिफाई किए हैं. फर्म साइज किया है, क्वालिटी ऑफ मेजर्स को किया है, एंड सो फोर्थ. बट आई विल लीव दैट असाइड. लेकिन अब आप मॉडल देखें तो आपको ये नजर आ रहा है कि दिस मॉडल इज वेरी सिंपलिस्टिक इन टर्म्स ऑफ their impacts on this issue, and I will break this down into impact frame, but we are not measuring this frame. What they are suggesting is that they are measuring this relationship through this frame into this. They are keeping a measure directly impacting this point, which is moderators, and this which indirectly logically ये इफेक्ट करती है कि ये इनका इस पे भी इम्पैक्ट आ रहा होगा, इस पे भी आ रहा होगा, वो हम इस वक्त इग्नोर कर रहे हैं, वरना ये एक और लंबी स्टोरी बन जाती है. इसी तरह से जो कंट्रोल वेरिएबल्स हैं वो भी कंट्रोल किए जाएंगे फॉर द बेसिक रिलेशनशिप जो यहाँ एग्जिस्ट करती हैं, उसको भी कंट्रोल करने की जरूरत है कि कहीं डिस्टर्बेंस ना हो. नाउ हैविंग क्या नाम है लेड डाउन द प्रोसीजर ऑफ हाउ एन आर्टिकल वाज कंसीव्ड एंड एस्टैब्लिश्ड फॉर पर्पस ऑफ स्टडी, फिर बाकी चीज़ें तो सिर्फ रह जाती हैं कि हाइपोथेसिस इसमें क्या है. सामने नज़र आ रहे हैं कि ब्रेथ का जो इम्पैक्ट है परफॉर्मेंस पे वो बहुत ज़्यादा है. आपका क्या नाम है स्ट्रेटेजिक फिट का इम्पैक्ट है परफॉर्मेंस के ऊपर. इसी तरह से आपका जो क्या नाम है कॉजल रिलेशनशिप्स हैं उनका इम्पैक्ट है, और इसी तरह से इन तीनों का इम्पैक्ट जो मीडिएटिंग वेरिएबल्स में जो लॉजिक आ रही है वो मार्केट नॉलेज की और क्या नाम है अलाइनमेंट की, मार्केटिंग अलाइनमेंट इन टर्म्स ऑफ इम्प्लीमेंटेशन की, तो वो भी कैटेगोरिकल हो रही है. और इसी तरह से मार्केट अलाइनमेंट अगर ठीक है, इम्प्लीमेंटेशन ठीक है, तो परफॉर्मेंस बेहतर होगी. इसी तरह से जो मार्केट नॉलेज है उसका इम्पैक्ट जो है वो भी परफॉर्मेंस पे होगा. और मॉडरेटर एक सिंपल सी चीज़ है कि जब आप उसको दाखिल करेंगे किसी भी रिलेशनशिप में, तो उसका इम्पैक्ट जो है वो बढ़ेगा या घटेगा, उसको मेजर करना है. अगर वो बढ़ता या घटता है किसी भी फ्रेम में उसके जो मॉडल के अंदर, तो हमें पता चल जाता है कि ये मॉडल जो है, ये जो कंस्ट्रक्ट है या जो वेरिएबल्स हैं, ये इसमें मॉडरेटर रोल प्ले कर रहे हैं. अब at the end, what have they been able to determine? They have been able to confirm through this research, and you can do that through confirmatory factor analysis and structural equation modeling and so forth, कि वाकई जितना comprehensive आपका जो मेजरमेंट स्केल्स हैं वो डेवलप किए जाएंगे, तो वो किसी ना किसी तरीके से वो इम्पैक्ट करेगा. उसमें लॉजिक है कि अगर हर पॉइंट के ऊपर आपने एक मेजर सेट किया हुआ है, तो उसको मीट करने के लिए नॉलेज में भी इजाफा करेगा, इम्प्लीमेंटेशन में बेहतरी आएगी. और इसके पीछे जो फ्रेमवर्क ऑपरेटिव है वो स्कोर कार्ड का है, जो कि एक 1992 में नॉर्टन एंड कम्पलान ने लिखा था स्ट्रैटेजिक उसके लिए लिटरेचर के लिए. तो उसमें भी यही चीज़ कही गई कि जिस बेहतर तरीके से आपके मेजरमेंट्स होंगे उतना बेहतर होगा. नाउ हैविंग सेड दिस, लेट मी क्विकली टच अपॉन द आर्टिकल दैट आई मेंशन्ड अर्लियर. वहाँ सिर्फ दो ही पॉइंट्स हैं जो कि, बाकी तो मैंने आपसे कहा कि इफ़ यू रीड इट विल रिवाइज योर होल कोर्स इन अ वेरी शॉर्ट कंप्रेस्ड मैनर. सिर्फ दो चीज़ें जो उन्होंने इस्टेब्लिश की हैं, जो हो सकता है आपने सुनी हो और उसके साथ आपको थोड़ा सा लॉजिक में थोड़ी सी कंफ्यूजन नज़र आती हो, वो है कैपेबिलिटी और कॉम्पिटेंस की.
the writer in this particular article has tried to identify competence as belonging to one person and capability belonging to the organization. नॉलेज मैनेजमेंट के अंदर या मैनेजमेंट की जो स्टडीज हैं उनमें इनका जो हैंडलिंग है वो डिफरेंट है, लेकिन दिस ऑथर हैज ट्राइड टू सजेस्ट कि एक शख्स की कॉम्पिटेंस होगी जब वो कंबाइन करेगी विद द अदर पीपल इन टर्म्स ऑफ स्किल्स एंड नॉलेज व्हेन दे आर प्लेस्ड टुगेदर, तो कैपेबिलिटी जनरेट होगी और वहाँ जो कैपेबिलिटी है वो रिसोर्स बन जाती है जो हमने भी इस आर्टिकल में भी जिक्र किया कि वंस यू अंडरस्टैंड द रिलेशनशिप्स बिटवीन द स्ट्रेटेजिक रिसोर्सेज, चाहे वो इंटेंजिबल हैं, बिकॉज इंटेंजिबल रिसोर्सेज आर मोर डिफिकल्ट टू कैप्चर इन रिलेशनशिप्स, तो वो उसका इम्पैक्ट आएगा. जैसे CRM है, दैट्स अ कैपेबिलिटी. कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट इज अ कैपेबिलिटी. नाउ दिस कैपेबिलिटी is created through various activities and combination of various individual behaviors. जब वो combine करेंगे तो फिर capability बनेगी और ये capability through this framework of model that we are discussing will have an impact on whatever firm's performance measure that you want to take. So हम differentiate कर रहे हैं कि firm का performance जो overall है वो क्या है और जो marketing के performance measures हैं वो क्या हैं. Marketing and performance measures are directly linked and targeted into the various categories and activities and behaviors of the marketing, but firm performance are not totally dependent on the marketing area because there are so many other factors that might have a relationship और उसकी जो explanatory power है जो explain करेगी उसमें और बहुत से ingredients आ जाएंगे. So keeping these two articles in mind, and I suggest that once you are finishing the course, you need to read these two. इस पे ज़्यादा मैंने time लगाया because this is a little bit more mathematically and calculative frame. दूसरा जो है वो basically it's a generalized comprehensive review of the course that we have done on marketing strategy and its relationship with the firm's objectives and performance. Now with this, I come to the conclusion of this course, and I hope that we have been able to capture the basic logic and significance and complexity of marketing and its marketing strategy and its management. Thank you very much. Take care and Allah Hafiz.